Okay, so let's continue the lecture from the previous itself. Ish, one more thing I will share with you is persons may feel कि sir please teach over the LED screen or LCD, but see, I always focus on the content, so not much worried about the things. कि what are the visuals? Thing is, what I want to teach that is impactful or not. Okay, so if you want over the LED or LCD, then you can go for the other source. Sorry, but I'll cover the dynamics part here only. Chalo. So what I told you in the previous lecture itself is the introduction part. We talked about the linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. After that, I talked also radial transverse, tangential and normal. Then we talked about ki how any particular component in this SHM or sorry dynamics part will be dealt. Definition, differential equation, initial conditions, then applying the question. So let's say yesterday we did what? Rectilinear motion, right? What we did yesterday? Rectilinear motion. There we talked about SHM. So tell me, what was SHM? The SHM was denoted by d2x over dt square equals minus mu into x, and that was something like this is a O fixed point. Let's say this is P, this is the distance A. The particle was starting its movement from here, so initial velocity was 0. This you call the amplitude, right? Fair. So with this set of understanding, let's do this question now. See, I have taken a good question. There you may learn the things in detail. Okay. If you are able to do this question, you will have the clear-cut understanding that what you need to do in this dynamics ka rectilinear motion part. Okay. So let's start. What is the question? Please focus on the word a light elastic. So whenever you have, see, I will take the time here in question. I will decode each and every word here. Okay. A light elastic string. क्या है अपने पास? इलास्टिक स्ट्रिंग है. ओके. लाइट मीन्स स्ट्रिंग का कोई वेट नहीं है. ओके. चलो. सो लेट्स से this is the point A, this is the point B, okay, and this length is L given to us, right? Elastic string जिसका length है L is fixed at the point A. It's such that if a weight W is attached to the point B, what you did here? You attached a weight W, right? Let's say on attaching this weight W, this string is stretched to C. Fine. What you said? On attaching the weight W, string is stretched to the point C. Right? Any doubt here? Chal. Let's move. How I am decoding this question? Please have this question as your model question. Okay. So if W is a string will be stretched to a length 2L, right? So what it is saying कि अब जो stretched है, let's say this C is not here, I take this C is here because they said कि this is stretched to L, so our figure should show the thing कि okay this is the length equal to this, right? चलो किससे आपने किया था? W weight अटैच किया था, right? Is that clear or not? चलो
if weight wy4 be attached to the point B and let fall from the level A. Now what they are doing is they are attaching some more weight small wy4 at the point B. So this will be stretched to this, let's say D. मतलब ये जो बेट आपने बी पर अटैच किया फिर अभी स्ट्रेच तो है ही, अब ये बेट उठा के आप ऊपर तक यहाँ तक ले गए और आपने छोड़ दिया. फाइन. सो व्हेन यू लीव दिस विल स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग, लाइक यहाँ से यहाँ तक जाएगा. अब चूंकि बेट आपने W/4 और अटैच किया था तो लेट्स से इट मूव्स टू द पॉइंट W, वो सॉरी D, राइट. सो हाउ आई कैन राइट दिस एज कि जो आपने W/4 द बेट यू अटैच्ड फॉर दैट, अब आपने उसे ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस बेट अभी ये कैसा मोशन करेगा? रेक्टिलिनियर, राइट. इज दैट क्लियर और नॉट सबको? सो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए दिस इज द डाटा गिवन टू अस. हमने जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया था उसको यहां पर अटैच कर लिया, राइट. नाउ आवर जॉब इज टू यूज दिस डाटा. सबसे पहले अटैचिंग द इलास्टिक स्ट्रिंग है. यू अटैच्ड सम वेट, स्ट्रिंग का लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू बाय L, तो यहां पर क्या लगेगा? हुक्स लॉ. व्हाट? हुक्स लॉ विल बी अप्लाइड हियर, that I told you in the previous lecture. So what happened when you applied the weight W in the first round? Let's say lambda is the elasticity constant, right? And your length is stretched from L to 2L divided by L. So L got cancelled. What you got here from here? Lambda equals W. Fine. So what I told you in the previous lecture, that by using some conditions, when you apply the Hooke's law, actually you will have the elasticity constant which we will be using further, right? चलो, अब क्या किया इसने? If a weight W/4 be attached to B and let fall, यहाँ पर आपने वेट अटैच किया और उसको फॉल मतलब छोड़ दिया आपने. अब क्या करेगा? ये जो वेट है ये स्ट्रिंग के सहारे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ दिस विल बिहेव. ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? W इक्वल्स टू लैम्डा से कोई दिक्कत? फाइन. अभी व्हाट द मोशन, वी टॉक अबाउट मोशन, राइट. Again I will say the persons who have any issues with the physics, they should take this question or explanation as model. Okay, चलो अभी क्या करते हैं? आपने क्या किया? W/4 वेट अटैच किया, राइट. और यू कैन से द मास, इसका मास कितना हो जाएगा? W इक्वल्स टू mg. What? Since W is mg, so if I want m, that will be 1/4 W/g, right? Let fall this weight W/4, right? अब क्या होगा? हमने कहा let C be the, please focus here, let C be the position of equilibrium. What? Let C be the position of equilibrium of this weight W/4. अब क्या होगा? At C, इसलिए at C क्या हो जाएगा? W/4 will be equals to lambda into BC divided by L. What I applied here? Hooke's law again, right? How I applied? BC, when you applied W/4, this goes to this length, right? C is the position of equilibrium. Okay,
सो नाउ वी हैव BC इक्वल्स क्या मिल गया अपने को L/4, राइट, दैट इज द इक्वेशन 2, क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, सिंस लैम्डा इज W। फाइन, आगे बढ़े अभी हम लोग, चले। अभी इसके बाद क्या है, W/4 इज ड्रॉप्ड फ्रॉम A। कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं आप, यहाँ से, ये वाला वेट यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अब मूवमेंट स्टार्ट होगा, राइट। तो लेट्स राइट अबाउट दैट। W/4 weight is dropped from the point A, okay, it falls the distance, इसको ध्यान से देखेंगे, it falls the distance AB equals to L freely under gravity or not, please focus here, when you leave this weight from here, तो यहां से यहां तक का जो मोशन है ये तो अंडर ग्रेविटी होगा ना, राइट, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट, तो अभी मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। सो इफ यू अप्लाई दिस, u इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर, सो v² विल बी 2g, h is what, L, right, so your v will be square root of 2gl। v किस पर है बच्चे, you can represent this at the point B। any doubt till here, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, राइट, यहाँ से स्ट्रेच करना स्टार्ट करेगा। अब स्ट्रेचिंग के केस में अपने को क्या चाहिए होगा, how to manage these things, it's new shows stuff to manage, right? anyways, it will take time, but yes, it will be compatible with the time, right? चलो, so अभी what we do is below B, इस B के बाद में स्ट्रिंग की मोशन को करते हैं, राइट, आफ्टर B द मोशन, अब मोशन कैसा होगा, अंडर द टेंशन होगा, राइट, स्ट्रिंग का जो टेंशन है आपके पास, अब वो टेंशन इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर T, राइट, एंड वो टेंशन आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमें मोशन स्टडी करना है तो हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ पर P, राइट, लेट्स से हमने यहाँ पर एक पॉइंट उठा लिया P, C इक्विलिब्रियम पोजीशन ले रखा है तो इस डिस्टेंस को ले लिया X, राइट, तो TP मेरे को क्या मिल जाएगा, टेल मी, W into L/4 plus X divided by L, again I applied Hooke's law here, right। चलिए अब हम क्या करें, the equation of motion of this weight W/4 at P is, equation of motion F equals to ma, m into d2x over dt square, and F is what, this tension T. So what we will have, please focus here, this is the, that is why I took so much time here, I was so much moving with so much peace, calm, because ultimately I have to have the data like this and I have to use this second law, Newton's second law of motion, right। अब क्या हो गया अपना काम, क्या था, 1/4 W/g into d2x over dt square equals to 1/4 W minus L/4 plus X upon L. Here I have applied m into A. This is m, this is A, and this is the W/4,
अब ये माइनस मैंने क्यों किया, प्लीज नोटिस हियर, क्योंकि W/4 नीचे की ओर है और टेंशन होगा स्ट्रिंग में ऊपर की ओर, सो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, T माइनस या फिर W/4 माइनस T, राइट? एनी डाउट हियर? Getting my point? So this is the major step in our process. Any doubt till here? If you don't have doubt till here, then my job is done, dear. Okay? Because in the dynamics part, if I am able to make you understand all such a story, then like almost half of the job is done. Fine? चलो, अब क्या है, अब अपने को एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर, d2x ओवर dt स्क्वायर, राइट? d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4g/l। क्या बोला था मैंने आपको, डेफिनेशन देन डिफरेंशियल इक्वेशन। टेल मी व्हाट डज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स? दिस रिप्रेजेंट्स SHM। इज दैट फाइन और नॉट? कोई इशू? अभी मैं क्या कर सकता हूं, अब तो बस वही अपना बोल बच्चन, 2 इंटू dx/dt मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 2dx/dt, राइट? इंटीग्रेट कर दीजिए, इसके बाद तो आपका ये बोल बचन टाइप का हो जाएगा, राइट? माइनस 4g/l, अपने पास क्या मिल जाएगा, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4g/l एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 gl, राइट? अभी आप इसको थर्ड नंबर दे सकते हैं। अब क्या है, ये इक्वेशन क्या देगा, इक्वेशन 3 will give the velocity, right? किस पर, at the point P। कोई इशू यहां तक? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आई कैन हैव, और यहां से भी अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए इंटीग्रेटिंग, मेरे को xt मिल सकता है, और अगर एम्पलीट्यूड चाहिए मेरे को, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, एम्पलीट्यूड के लिए अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम जहां तक जाता है उसके बाद वहां पर वेलोसिटी हो जाता है 0, राइट? This you learned in 10+2 level, okay? So put this here, what you got, a, you got a equals 3/4 l, and I guess in the first part they asked this question only, if I'm not wrong. Check it out please. In the first part they asked this, right? Is that clear or not, सबको? So this is the way to do things. अभी क्या पूछा है, the distance through which it falls is 2l। अभी इसके लिए अपने को क्या करना है, कहाँ तक ये जा रहा है, राइट? फॉर दैट टोटल डिस्टेंस, राइट? तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, फिगर कहाँ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। सो दिस इज द आंसर सेकेंड, राइट? तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, l प्लस l/4 प्लस 3/4l, दैट इज 2l, राइट? कोई इशू यहां तक किसी को? चलिए, सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन बी सी, तो ये जो W/4 था उससे जो डिस्टेंस आएगा वो L/4 एक्सटेंड कर रहा था, राइट? कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। अब क्या पूछ रहा है, टाइम के बारे में, आई गेस दे आल्सो टॉक्ड अबाउट टाइम, राइट? द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। सो प्लीज लिसन केयरफुली हियर। पीरियड आपको चाहिए ना टाइम, तो पीरियड इज व्हाट, पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में। अब आप देखिए, हियर योर टीचर नीडेड, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? इसके नीचे का मोशन दैट इज योर, फिर आपने वो SHM के थ्रू फाइंड किया, राइट? ठीक, उसके पीछे आपने क्या किया, फिर वापस से जाएगा सेम SHM, और उसके लिए जो ये होगा ये फ्रीली अंडर मोशन है। तो अभी अपने को अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो T1
जो फ्री अंडर मोशन है, तो इसके लिए T1 मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाट आई कैन अप्लाई, V इक्वल्स टू U प्लस एफ टी, सो F इज Z, राइट, तो V इक्वल्स टू U प्लस G, T1 अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं फॉर दिस, तो अपने को कितना मिल जाएगा, T1 equals to under root 2 L by G, because V1 we have found, कहाँ गया अपने पास V1, वो मैंने आपको पीछे भी बोला होगा कहीं पर, this is there VV, right, so this is VV, is that clear? T1 मोशन इसके लिए हो गया, अब एक बार जाएगा और दूसरी बार फिर वापस जाएगा, सो इट विल बी 2 टाइम्स, मतलब इसका जो टाइम होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम, राइट। अब इसके नीचे वाला जो SHM है उसके लिए अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट से जो अपने पास है वहां पर उससे ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, dx अपॉन dt वाला, राइट। दिस आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, how to find the time period in the SHM, right, how to find time period in SHM, right। so थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपने लिए क्या हो जाएगा बच्चे, एक तो 2T1 वो जो AB वाला था, प्लस अभी आपको कल भी बोला गया था व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दैट SHM। अब SHM के लिए कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू स्टडी दिस थिंग, ओके, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस नाउ, प्लीज डू फोकस हियर, otherwise you won't be understanding the things. So what actually we have from this differential equation, we have dx upon dt equals under root 4g by L, right, into under root 9 by 16 L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, दिस इज अंडर रूट, यहाँ तक है केवल, ठीक है। अब इसके लिए आपने कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम B to D, so that will give you the time taken from the motion B to D, right, time taken from the motion B to D, right। चलिए, so अभी अपने पास ये बन जाएगा 0 to 2 dt t to dt, राइट, और इसके लिए अपने को चाहिए अंडर रूट L/4g, ये तो हो गया, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन अपना रहेगा -L/4 से 3L/4, ठीक है, और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 9/16 L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है आई गेस हियर, बस इस वाले को जो ये टर्म लिखा है दोस्त, एक dx के साथ में ये टर्म ले लो, dt के साथ, dx के साथ में ये पूरा टर्म लेकर आओ और dt केवल यहाँ रखो, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल गेट द T2 एज अंडर रूट L/4g, फाइन, इनटू दैट इज π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, राइट। अब अपने पास देख लो, एक तो क्या है, एक तो SHM वाला होगा BC वाला पीरियड, राइट, तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2L/g प्लस अंडर रूट L/4g π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस आपको लगा होगा, वाई, बिकॉज आई वॉज डिटेलिंग एवरीथिंग हियर, कि आप कहाँ पे स्ट्रक हो सकते हैं, कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वेयर यू विल अप्लाई हुक्स लॉ, how you will get the differential equation, by using the differential equation how you will write the amplitude, by integrating that you can get the time in the distance x, right। so उसके लिए अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, वापस से इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, फाइन, कोई इशू होगा तो बोलेंगे, राइट। सो दिस इज विद अस देख लीजिए इस चीज को, ठीक है, आगे बढ़ूं अभी, चलिए। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अभी आपने देख ही लिया कि एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद लिखने में हर चीज में टाइम लग रहा है, राइट। तो वो जो आपने कृष्णा सीरीज जो बुक मैंने फॉलो किया था उसके लिए आई विल, मैंने वहां पर हर क्वेश्चन के आगे लिखा भी है एज द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, राइट।
तो उसके ऊपर आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट करूंगा, लेट्स से, ये तो मैंने आपको करवा दिया। लेट्स से इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल 64 पेज नंबर 120, ओके, प्लीज रीड आउट दिस क्वेश्चन। दिख रहा है? चलो, ए पार्टिकल, अब इतना मेहनत करने के बाद देखो ना, अब आपको मजा आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब आपका एक ही काम होगा, जैसे जैसे आपको बोलता जाएगा, you will be feel like a particle of mass m is attached to one end of an elastic string. Underline the word elastic, right? Natural length a, अब a small l की जगह a दे दिया। Modulus of elasticity lambda equals to 2mg, right? lambda दे दिया आपको। अब जब when you will apply, कि कोई आपने let's say if some bait is attached to an elastic string, so elastic string will be stretched. So stretching is because of the weight, right? So let's say you have attached the weight mg, okay, or 2 mg or 5 mg. Then by the Hooke's law, what the equation you will have? आपने क्या वेट अटैच किया वहां पर? देखिए, मास m का वेट अटैच किया गया, राइट? दिख रहा है? मास m का वेट अटैच करने का मतलब जो w होगा that will become mg. Due to this, your tension occurs in the string. Please do notice this word. Your tension occurs in the string, and by the Hooke's law that will be lambda into b by a, where v is the stretch in the length of the string. So from here you got the relation b and a. अब आपने क्या किया, उस पार्टिकल को जस्ट फॉल फ्रॉम ए, कहाँ गया आपके पास, लेट से आप ऊपर तक ले गए, ये ओरिजिन था, आप यहाँ तक उसको लेकर गए, अब आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है। सो व्हाट द पॉइंट टू नोटिस हियर, why we have invested 23 minutes in the first question? The reason behind this is you have to observe under which part it is coming freely. So for freely you will equation b equals to u plus ft, b square equals to u square plus 2fs, or s equals to ut plus half ft square. 3 equations, 10 plus 2, 10 से पढ़ते आ रहे, राइट? उसके बाद में जब मोशन आपको करना होगा तो आप एक आर्बिट्ररी पॉइंट P लेंगे, राइट, डिस्टेंस x पर, ओके। सो प्लीज रीड दिस एक्सप्लेनेशन, आपको 1 सेकेंड के अंदर पूरा क्लियर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आपने TP, जैसे इन्होंने यहाँ पर दोबारा में कुछ वेट अटैच किया होगा, वहां पर हुक्स लॉ दोबारा लगाया, दिस इज द मोशन ऑफ इक्वेशन, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 अपना क्या है, whatever given in the question, I have to read that step by step and figure out everything, then applying Hooke's law, then getting the differential equation, solving the differential equation, I can tell you the velocity at any point P, right? अब क्या पूछेगा, अब आपको वेलोसिटी पूछ लिया ज्यादा से ज्यादा, और क्या पूछ सकता है, लेट से एम्पलीट्यूड पूछ लिया, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम में जाके 0 हो जाना है, वेलोसिटी वहां पर, तो v को 0 कर दीजिए, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब उसने बोला टाइम बता दीजिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो मोशन हो रहा है, व्हाट द टाइम विल बी टेकन। तो द सेम स्टोरी व्हाट आई टोल्ड यू, एक तो फ्रीली वाला, फिर उसके बाद जो ड्यू टू पार्टिकल जो मोशन, जो वेट से मोशन हो रहा है, उसके कारण में इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो टाइम लगेगा, टाइम लगने के लिए यू हैव द इक्वेशन इन dx अपॉन dt, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x कहाँ से कहाँ लेके जाना है आपको उतना आप देख लीजिए, कि लेट से x इज c टू b लेकर जाना है, राइट। तो बस हो गया काम आपका, इक्वेशंस लाइक दिस। अब आप 65 पढ़ लीजिए, द सेम थिंग 66 पढ़ेंगे, आप कहां पर फंसेंगे, जैसे लैम्डा इलास्टिसिटी ये दे रखा है, देखिए क्वेश्चन इसको, एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। आई विल से व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, हुक्स लॉ, राइट। हुक्स लॉ से आपने जो भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, by applying Hooke's law you will get the equation of motion. Equation of motion is F equals to ma, right? Here these things please notice, ठीक है, पुली के केस में, what,
पुली के केस में दिस यू हैव ऑलरेडी डन एट 10+2 लेवल, यू डोंट नीड माय दैट मच सजेशन, राइट? कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में होगी आपको, देन डू लेट मी नो. Questions are very easy. I told you what the process you have to follow. Okay, let's move now. ऐसे आपको मैंने बोला ना, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किया, झूठ मूठ का तमाशा करेगा, क्या करेगा, बोला इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू इनटू x. अभी उसने माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर कर दिया. अब इसी के हिसाब से अपना इंटीग्रेशन करते जाइए, वेलोसिटी आ जाएगा. एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करके उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का टाइम निकाल सकते हैं. बस यही सब स्टोरी है, आपको पढ़ लीजिए इसको, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसके क्वेश्चंस में आप कहाँ फंसेंगे मैंने आपको हिंट किया हुआ है. तो आई विल सेंड यू पीडीएफ्स ऑफ सच क्वेश्चंस, राइट? नो इशू इन दैट. लाइक दिस क्वेश्चन, कहाँ पे आपको मोशन ऑफ इक्वेशन में दिक्कत आएगा, मैंने वहाँ पर लिख रखा है. इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने को है नहीं मेरे को, राइट? यू पीपल आर ऑलरेडी सो स्मार्ट, राइट? चलो, सो रेक्टिलिनियर मोशन में SHM और इनवर्स स्क्वायर लॉ, आई होप you understood the things. Now I would like to move on the constrained motion and motion in resisting medium. Okay, वहां पर भी अपने को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, इफ आई एम एबल टू क्लियर दैट, then it will be like more easy for you to do the things, right? चलो, अभी इसको हटा दें, चलो इसको साइड करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट रेक्टिलिनियर मोशन का. ठीक है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज constrained motion. Constrained motion. Okay, so in the constrained motion आपने सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, write the definition. Okay, so what is the definition? The motion of particle is called constrained motion. The motion of particle is called constrained motion if it is compelled, underline the word, मजबूर है बेचारा, it is compelled to move along a given curve, fine, or surface. Please notice this word, what they are saying कि okay, motion is there but रेक्टिलिनियर मोशन ये नहीं है. ख्याल रखें आप लोग, मैंने कहा रेक्टिलिनियर मोशन का कंपोनेंट इज नॉट दिस. आई सेड आई हैव डिवाइडेड दिस सिलेबस टू टीच सच इन द मॉड्यूल्स. ओके, सो सपोज दैट you have a thread, okay, and you want some particle here. अभी you just बचपन में घुमाते थे ना ऐसे करके. so आपने क्या किया, बोला कि तुम चुप रहो, ठीक है, तुमको घूमना होगा इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, राइट? व्हाट इज सर्कुलर पाथ? सो व्हाट यू डिड, यू जस्ट फिक्स्ड द सरफेस, राइट, और कर्व, कि दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, लाइक दिस. और क्या हो सकता है, आपके पास एक केस और यहां पर आ सकता है. यू हैव हर्ड अबाउट साइक्लॉइड. In the integral calculus, I have talked about that. So persons who are new to the lecture, they are suggested to go through the integral calculus wala classes. Okay, there I told you cycloid, fine. And persons who are not interested in going through the previous lectures, for them I'd like to suggest here, in the UPSC syllabus, okay, in the UPSC syllabus we have only two cases. What? Number first circular path, number second
cycloid. Okay, only these two are in our syllabus. तो what you need to do is cycloid का equation याद कर लीजिए, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हाइट क्या होता है. सो बिट इंट्रोडक्शन, राइट. इज दैट क्लियर? चलो, अब व्हाट आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, व्हेन दिस इज अ मोशन, तो अब यहाँ पर मोशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट, एंड नॉर्मल वेलोसिटी, राइट. सो टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने को क्या मिलता है, टेल मी. Suppose that this is the point. So if I take like this, please do notice here. Now I am telling you the most crucial thing. Let's say मैं इसको यहाँ पर figure out करता हूँ. Okay, circle है ये. So how to get the differential equation for any constrained motion, right? So let's say this is the point O. Fine. Let's say this is the angle theta. Let's say this is the point P. Please do notice here, that is the important part of this constrained motion, because if you are able to get this, everything is done. फिर तो क्या है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, कंस्ट्रेंट लगाना इक्वेशन, और t और x के बारे में बात करना, राइट. चलिए, सो लेट्स से दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. ओके, व्हाट, लेट्स से a जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, इसके बाद वापस से ये इसी सर्कल पर मूव करने लगेगा. ओके, चलो. सो अभी क्या है, आई वांट टू डिस्कस वेलोसिटी, टाइम टेकन एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट p, जैसे अपन रेक्टिलिनियर में कर रहे थे, राइट. कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट p ले लेते थे, तो यहां पर इस कर्व पे अब ये जो s होगा, दिस विल बी आर्क लेंथ. व्हाट, आर्क लेंथ. दिस ऑल्सो वी हैव टॉक्ड इन इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो चीजें चाहिए होंगी, वट एवर थिंग्स रिक्वायर्ड हियर, दैट आई विल टेल यू हियर इटसेल्फ. ओके, सो नो नीड टू वरी. नाउ in this motion I will have two things that I told you in the introductory. एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और इसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन, राइट. व्हाट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन. फाइन. सो लेट्स से ये जो स्ट्रिंग है, आपने क्या किया है, ये एक स्ट्रिंग है, यू अटैच्ड सम पार्टिकल एंड यू आर जस्ट ऐसे ऐसे उसको मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, let T be the tension in the string. Is that clear? So if this angle is theta, let's say अब ये जो पार्टिकल है इसका कुछ वेट होगा, let's say that weight is acting downwards, obviously नीचे की ओर काम करेगा. This is the angle theta, so this will become, please do notice these things, these are the very important concept here. This is mg cos theta. अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी mg sin theta. Fine. This is the arc length, this is theta. Let's say this radius, this is the a or rho, whatever you take. Fine. बस our job is done. अब क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो यहाँ पर. what you will write, इक्वेशन ऑफ मोशन. तो tangential acceleration m into d2s over dt square, that will be equals to minus mg sin theta, माइनस mg, क्योंकि टेंजेंशियल इधर की ओर, तो जो इधर की ओर जा रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, सो आई हैव अटैच्ड माइनस साइन हियर, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग. और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी, द फॉर्मूला इज एम बी स्क्वायर अपॉन रो. रो की जगह आपने क्या ले रखा है, a, right. So what you have taken, rho, this radius as a, mb square upon a equals, अब t टेंशन इधर की ओर, mg cos theta कंपोनेंट इधर की ओर, so what is the effective thing, t minus mg cos theta.
बस दिस इज द थिंग विच यू रिक्वायर फ्रॉम माई साइड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू नाउ बाई ओन योर सेल्फ. अभी क्या करना है आपको? थिंग इज, मैं आपको यहाँ पर हिंट कर रहा हूँ. अब आप देखिए, मैं बुक लेकर आ रहा हूँ आपके सामने. These equations you have written, please check it out. I have told you how these things are coming into picture. Now you have to write a arc. Angle is equal to arc upon radius, right? So S equals to a theta. Now apply this S equals to a theta in this equation. You will have the equation like this. Now what it is representing? अभी कैसे इंटीग्रेट करना बताया था? डी थीटा अपॉन डी टी आपको मिल गया. अब ए डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज योर वेलोसिटी कंपोनेंट हियर, वी स्क्वायर. ओके, सो ये अब आपको वी स्क्वायर इस फॉर्म में मिल गया. अभी आपने क्या किया? टी का वैल्यू निकाल लिया इस इक्वेशन को यूज करके. सो वी एंड टी, दीज टू थिंग्स आर क्रूशियल हियर. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सुनिए. अब इसमें बहुत काम की चीज है. प्लीज डू नोटिस, यूपीएससी सीएसई दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इटसेल्फ. प्लीज डू नोटिस, प्लीज रीड ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस कि व्हेन दिस पार्टिकल विल मूव हियर देन व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, व्हाट विल हैपन, उसके बाद में क्या होगा. सो ऑल दीज केसेस आर डेल्ट to discuss these things, right? So please read all these stuff carefully. If you are able to read this thing, फिर क्वेश्चन का तो बैंड अपने आप बच जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं बचेगा फिर. क्लियर है अभी? चेक इट आउट प्लीज. सो डू दिस थिंग फॉर कंस्ट्रेंड मोशन. कंस्ट्रेंट में जो मुझे बताना था वो आपको इतना ही बताना था. उसके बाद यू पीपल आर स्मार्ट एनफ टू रीड सच स्टोरी. ओके, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जाएगा खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पर. बस v जीरो पुट कर दो यहाँ पर. अब सिमिलरली कंस्ट्रेंट मोशन का एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल. आप चाहेंगे तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रोजेक्टाइल्स का वी विल हैव अ सेपरेट चैप्टर. ओके, यहाँ इसको करने की जरूरत नहीं है. एक टॉपिक है हमारे पास, मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम. मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम इज वेरी इजी टू डू. आई एम सेइंग वेरी इजी. हाउ? आप तो केवल आप ऐसे समझ लो कि ये कुछ यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर से आपने एक बॉल छोड़ दिया. अब बॉल नीचे जा रहा है, ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया. एक आपने नीचे से कुछ ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इसमें लगा रहा है, राइट. एक मीडियम है, तो यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 1, टाइप 2. सो प्लीज रीड दिस स्टोरी. ओके, रेस्ट थिंग आर सेम एज वी डन अर्लियर. अब मान लो एक मोशन कोई भी पार्टिकल है आपके पास जिसका मास m है. देखो कितना आसान सी चीजें हैं ये. तो पहले जो 23 मिनट वी हैव इन्वेस्टेड, दैट इज द लाइक पावर बूस्टर फॉर अस. अब कैसे स्टोरी को पढ़ दो, इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल्स टू एम ए, पूरा का पूरा डायनामिक्स उसी के इर्द गिर्द घूमेगा. F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास अब m इंटू जी नीचे की ओर, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको उन्होंने दे रखा होगा. यहाँ पर पढ़िए इसको कि दैट रेजिस्टेंस इज m के बी स्क्वायर. तो अब वेट नीचे की ओर और रेजिस्टेंस क्या है, वो उसके अपोजिट वर्क करेगा. सो दैट इज व्हाई वी अटैच्ड नेगेटिव साइन हियर. We got the differential equation, integrate that, write the formula. Here I will suggest you to do bit exercise. Please notice UPSC में आपका बैंड यहाँ पर बच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. If you don't practice such integrations, you will be feeling so much panic in the exam hall. I am pretty sure. मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. चलिए. In the same manner, you should at least you should practice by looking over such things. You will never learn. अब मुझे पता है, मुझे देखो ना, अब जहां पे भी है मैं तुरंत पेन रखते जा रहा हूं, because I have a feeling for that. I have done these things multiple times. That is why I have a feeling. So इसके लिए जो आपको v मिल रहा है, x मिल रहा है,
उसके ऊपर में फॉर्मूला बना के दे जस्ट आस्क क्वेश्चंस। अब यही मोशन जब ऊपर से नीचे की ओर के लिए ये मोशन है, और नीचे से ऊपर के लिए ये वाला माइनस साइन इसमें mg में अटैच हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर की ओर आपने फेंका है, राइट। सो दीज टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर इन द मोशन ऑफ रजिस्टिंग मीडियम। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, दोज क्वेश्चंस यू पीपल हैव टू ट्राई दोज क्वेश्चंस। आप इसका एग्जांपल ये जो दिख रहा है ना 23, इसको भी अगर आप सही से पढ़ के आप इसको लगा देंगे कुछ नहीं है, बच्चे वाली चीजें हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, अब आप ये देख लो पहले कि आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो कि ऊपर से नीचे की ओर, राइट। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद टाइम पूछा है तो इंटीग्रेट करके कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, जस्ट यूज दैट सिंपल एप्टीट्यूड। सो प्लीज डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम इज आसान। इनवर्स वो उसके लिए मैंने कर ही लिया आपको। कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ आप फंसेंगे। प्लीज डू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ आप फंसेंगे उनके लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, दीज पीडीएफ्स आई विल शेयर विद यू, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 4 आपको दिख रहा है, ये अल्फा एंगल कहाँ पे कहाँ आप फंस सकते हैं, मैंने हर जगह उसको टिक किया होगा, ठीक है। सो प्लीज डू सॉल्व, दिस इज मॉडल क्वेश्चन फॉर यू। देखिए आप, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब ये चीजें मैं आपको 1000 बार यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट कर लूं, आप जब तक खुद से नहीं करेंगे, व्हेन यू वोंट डू बाय योरसेल्फ, यू विल नेवर फील माय डियर। बस यही था कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दूं, मतलब एक अच्छे बोर्ड पर कैसे HD कैमरे पे पढ़ा दूं। थिंग इज मुझे डायनामिक्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है, जहां मुझे करना था आई गेव यू अ टाइम, ओके। चलो, so do practice such questions. I will share this PDF as I get the time. So we'll meet in the next lecture for central orbit वाला part. Fine? खुल भी गया पहली बार में। ये भी इजी है, इसके अंदर भी बस अब क्या होगा ना, ये जो कंपोनेंट है ना रेडियल और ट्रांसवर्स, सेंट्रल ऑर्बिट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेडियल एंड ट्रांसवर्स। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो बनते हैं, एब्साइडल डिस्टेंस क्या है, अब ये इंटीग्रेशंस अगर एक बार याद कर लिया जाए तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाता है, ओके। सो फॉर यू द होमवर्क पार्ट इज, आप सेंट्रल ऑर्बिट का डेफिनेशन पढ़िए, इसके बाद यू विल लैंड अप विद द थिंग्स। ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, दीज यू नीड टू रिमेंबर। रेडियल एक्सीलरेशन, उसको कैसे, यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होता है वो ये है यहाँ पर सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर। I am not running. Why I am saying like this? Because I have so many things to do. कुछ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा हिंट करके इसलिए जा रहा हूँ कि अगर किसी भी स्थिति में क्लास अगला ना ले पाऊँ मैं कुछ दिन, 2-3 दिन 4 दिन, तो आप परेशान ना हो। इस हिंट को जो मैं करके जा रहा हूँ, आप उससे ये समझ पाएँ कि दिस इज़ नॉट दैट मच टफ टू डू, ओके। ये जो इलिप्टिक ऑर्बिट होगा, तो इसके लिए अब इलिप्ट का जो इक्वेशन होता है, पीडल इक्वेशन, वो ये होता है, ये आपको यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये आप खुद से कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी आई विल डू दिस, फाइन। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस आर दिया होगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है सेंट्रल ऑर्बिट का, उसको अप्लाई कर दो एंड गेट द रिजल्ट, राइट। इजी वन, इजी वन, राइट। चलो इसको एक बार देख लेना आप, अदरवाइज आई विल टेक द लेक्चर फॉर दिस, फाइन, ओके, गुड लक।